Namaskar dear students, welcome your own channel. Let's talk about chemistry. So dear students, today we are starting class 12th organic chemistry. Hope this videos organic chemistry's video helpful for you. So dear students, our first chapter in organic chemistry is haloalkanes and haloarenes. First chapter of organic chemistry, haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. This is class 12th organic first chapter. Today we are starting organic chemistry class 12th. So dear students, basically organic chemistry started from class 10th. In class 10th, chapter number 4, carbon and its compound, you really well know that organic chemistry, if there is carbon and hydrogen, in other means you can say if there is carbon and hydrogen, hydrocarbons, that is known as the organic chemistry. यानी कि intermixing compounds, carbon and hydrogen, they share their bond, covalent bond, ionic bond, and that is the organic chemistry. Other ways, if there is the carbon, you know one property, the most important property in class 10th, carbon is catenation, self-linking property. Carbon to carbon self-linking property is known as the catenation. Due to this property, complete organic is based on the catenation, carbon to carbon self-linking, and secondly, carbon have 4 valence electron. So haloalkanes, to try to understand what do you mean by the haloalkanes. The meaning of haloalkanes, halo means halogen, it derived from halogen. Okay, in there halo means salt and gen means formation. Halo words derived from halogen, and halo, in the word halogen, halo means salt, gen means formation. That means formation of salt. Salt formation is known as the halogen. Next, you very well know alkanes. Alkanes, which is denoted by R. Alkane groups which are denoted by R. If general I talk about examples of haloalkanes, so examples of haloalkanes is most popular example CH3Cl, chloroform. Chloroform is the example of haloalkane, where you see CH3 is the R is the alkyl group. There is the difference, alkane and alkyl. Alkane and alkyl group. What is the alkane? The general formula of alkane is CnH2n plus 2. And if I talk about alkyl general formula, CnH2n plus 1. Minus 1 hydrogen, so that group is the alkyl group, and basically alkane, and that is the complete hydrogen, that is known as the alkane, and minus 1 hydrogen,
that is the alkyl group. So here R or this chlorine is X. What do you mean by the X? X is the group 17. Group 17. Group 17 contains fluorine, chlorine, bromine, iodine. ठीक. This group known as halogen group. This group is known as halogen group. And halogen groups helps to formation of salt. Halogen group helps to formation of salt. Okay. This is the group 17. So it is denoted by X. We have, if there is written X, that means fluorine, chlorine, bromine and iodine. Okay. Group number 17 is denoted by X. So R is the alkyl, R is the alkyl, X is the halide. So here the question, sir, you say this is the halogen. You written here halide. What is the difference? Beta, there is the difference. If there is the no negative charge on fluorine, chlorine, bromine, iodine, that is the halogen group. If there is the negative charge, so I here denote F negative, chlorine negative, bromine negative and iodine negative, then it is halide. Then it is halide. Okay. If there is the simple fluorine, chlorine, bromine, iodine, that is the halogen. If there is the negative charge fluorine, chlorine, bromine, iodine, then it is the halide. So X here we denote negative charge. So it is the alkyl halide. It is the alkyl halide. Okay. So there is the one halogen group. X group is the halogen group and alkanes is the R, the alkyl group. That means this is the haloalkanes. And those compounds which contain organocompounds. Organo means carbon and hydrogen. And there is, we substitute one hydrogen and a replacement of hydrogen we put halogen group. That is known as the haloalkane. In the simpler form, so I think you understand it. So in the simplification, more simplification, you know that this is the alkane group. Here I subtract hydrogen. Yeah, I remove hydrogen from that reactant and adding here X group. So it makes RX. That is known as haloalkane. That is known as beta haloalkanes. Simply, we have aliphatic chain of hydrocarbons. This is the aliphatic chain. Open chain is known as the aliphatic chain. Aliphatic chain. Here we remove one hydrogen and in the replacement of hydrogen we added halogen group. That is, we have the product RX. That is known as the haloalkanes. So if I talk about definition, I think you all understand it. So if I talk about definition, the organohalogen compound, the organohalogen compound in which
in which halogen atom in which halogen atom fluorine, chlorine, bromine and iodine in an present in an aliphatic. What do you mean by the aliphatic? Open chain. Carbon open chain is known as the aliphatic. Aliphatic chain known as haloalkanes. So this is the simple definition. The organohalogen compounds. Organo means carbon and there is the hydrogen. Halogen means halogen group, addition of halogen group. Compound in which halogen atom, which is halogen atom, fluorine, chlorine, bromine, present in aliphatic chain known as haloalkane. That is known as the haloalkanes. Okay. So I told you X is the fluorine, chlorine, bromine and iodine. So what is the possibility? RF, RCl, RBr, Ri. These are known as the haloalkanes. These are known as the haloalkanes. In other words, this is known as methane. This is known as beta methane. Take an example. If I make methane in haloalkanes, yeah, I convert into methane into haloalkanes. So what is the possibility? From here I remove one hydrogen, or in the place of hydrogen I put one chlorine, bromine, yeah, fluorine, iodine, anyone in the halogen group. So this is the structure of methane. Here the bond breaks from here. Hydrogen is removed from here, and in the place of hydrogen I added X group. So H, F, H and Cl. ठीक, where commits Cl? X. You take fluorine, chlorine, bromine and iodine. You take it fluorine, chlorine, bromine, iodine. I take chlorine, so I put it. That from here the compound is known as CH3Cl. I told you that is known as chloroform. That is known as chloroform. ठीक है? So the chain of carbon and hydrogen, from here simply we extract one hydrogen, and in the replacement of hydrogen we put one halogen group, that is known as the haloalkanes. Simply that is known as the beta haloalkanes. Okay, here are completely simplification here. R is the aliphatic hydrocarbon. R is the aliphatic hydrocarbon. A complete aliphatic hydrocarbon. X is the halogen atom. X is the halogen. X is the halogen atom. Okay, dear students, this is the, in other way you also can say that, in other way you also say that
haloalkanes are the, in other words, you can say haloalkanes are the halogen derivative, are the halogen derivative of alkanes, derivative of alkanes. The haloalkanes are the halogen derivative of alkanes. ठीक, these are the derivative of haloalkanes. You simply say this definition also is very useful. Okay. From next topic, types of haloalkanes. Types of haloalkanes. haloalkane की types of haloalkanes की types. So first type is on the basis of number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom. Simply you can say that if there is one halogen atom, यानी कि how many halogen atoms are present, तो first difference या first type of halogen atom या haloalkanes, first type of haloalkanes is कि it is divided in the two parts. First part is the on the basis of number of halogen atom, कि how many numbers of halogen atom are present in the aliphatic hydrocarbons. Second type is on the basis of hybridization, on the basis of hybridization of carbon to which halogen atom is attached. So there are two types. A classification of haloalkanes are two types. First is the how many number of halogen atoms are present in aliphatic carbon chain. Secondly, on the basis of hybridization, here means that the halogen group is attached to the carbon atom. Okay, जो halogen atom is attached to the carbon atom. So the carbon have the hybridization. Which hybridization it have? sp2 hybridization, sp3, sp3, sp2, d2 sp3, sp3 d2. So there is the two types of haloalkanes. Okay. So dear students, first we talking about first type of halogen atom, first type of haloalkanes. Dear students, first we talking about the first type of haloalkanes is how many number of halogen atoms. So first type is on the basis of number of halogen atoms
नंबर ऑफ halogen atoms, halogen atoms. So first is monohalogen. If anywhere the word you see mono means single. ठीक है, mono means single. So if there is one halogen atom present in aliphatic carbon chain, that is known as the monohalogen. If there is one halogen atom present in aliphatic hydrocarbons, that is known as the monohalogen. If you talking about example CH3X, there is the one halogen atom, and what is the X? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. So this is known as the monohalogen. The other simplification I can say that ऐसे आपके पास हाइड्रोकार्बन की एलिफेटिक चेन इन द सिंप्लीफिकेशन वे, ऐसी एलिफेटिक कार्बन की चेन जहां पे सिर्फ एक ही आपके पास क्या प्रेजेंट हो, हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज द मोनोहेलोजन. ठीक है, मोनोहेलोजन. सेकंड टाइप इज डाईहेलोजन. नाम से पता लग रहा है, डाई मीन्स दो, जहां पे दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हो उसको क्या बोलेंगे, डाई हेलोजन. ओके, जैसे CH2X एक हेलोजन ये, और ये CH2X, इट कनेक्टेड विद द सिंगल बॉन्ड. कार्बन हैव द 4 बॉन्ड, कार्बन 2 हाइड्रोजन 3 4 बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड. ठीक है, ठीक है कि नहीं, 2 3 and 1 4. जहां पे दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे भाई, डाई हेलोजन बोलेंगे. क्या, डाई हेलोजन. अब इसमें भी टाइप आती है डाई हेलोजन में. डाई हेलोजन में जो फर्स्ट टाइप आती है आपके पास, या तो ये पॉसिबिलिटी है कि CH3 आपके पास जो है CH एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो. ठीक है, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो, या इस प्रकार से दोनों अलग अलग नेबरिंग कार्बन के ऊपर क्या हो, हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो, या तो एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े हुए हो. फर्स्ट टाइप इज एक ही कार्बन के ऊपर, देखिए इस कार्बन के ऊपर मैंने हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया, एक ही हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया. तो अगर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हो उसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स. जैम डाई halides, that is known as the gem dihalides, या in other words जेमिनल भी बोल सकते हो. जेमिनल, जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस, जुड़वा. जेमिनल मीन्स होता है ट्विंस, जुड़वा. और अगर इस प्रकार से अलग अलग हो तब कैसे होगा, तब देखिएगा. इसी को लेता हूं मैं, CH2 एक यहाँ पे X और CH2 एक यहाँ पे X. ठीक है, इसको बोलते हैं विक डाइहैलाइड, VIC विक डाइहैलाइड. ये क्लासिफिकेशन है भाई, विक डाइहैलाइड. या आप इसको दूसरा नाम क्या बोलते हो, विसिनल भी बोल सकते हो, विसिनल. ठीक है, विसिनल का मतलब होता है नेबरिंग, पड़ोसी. विसिनल का मतलब होता है नेबरिंग, यानी कि पड़ोसी. ठीक है, यहाँ पे आसपास कार्बन के ऊपर क्या हेलोजन है, यहाँ पे एक पे है तो जेम डाइहैलाइड यानी कि ट्विंस यानी कि जोड़ो. सेकंड टाइप कंप्लीट है. अगर इसके अलावा किसी भी एलिफेटिक कार्बन की चेन में अगर 3 हेलोजन एटम हो, 4 हो, 5 हो, तो हम उसको बोलेंगे पॉलीहेलोजन. क्या बोलेंगे, पॉलीहेलोजन. ठीक है, एग्जांपल लिख सकते हैं, CH2X, CHX और ये CH2X.
दिस इज द एग्जांपल, यहाँ पे 3 है, ठीक है। दूसरा नाम इसको ये भी बोल सकते हो आप, मोनो हेलोएल्केन भी बोल सकते हो, मोनो हेलोएल्केन भी बोल सकते हो बेटा इसको। इसको डाई हेलोएल्केन भी बोल सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डाई हेलोएल्केन भी बोल सकते हो। इसको पोली हेलोएल्केन बोलते हैं, पोली हेलोएल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो भाई 2 क्लासिफिकेशन थी। एक क्लासिफिकेशन आपके पास है हेलोएल्केन्स। अगर मैं स्टार्टिंग से डिफाइन करूँ अगेन कि हेलोएल्केन्स किसको बोलते हैं, तो हेलोएल्केन्स उसको बोलते हैं कि आपके पास कार्बन की एलिफेटिक कार्बन की चेन हो और उस कार्बन की एलिफेटिक चेन में से एक हाइड्रोजन को मैं रिमूव करूं और उसके प्लेस पे मैं एक हेलोजन एटम को ऐड करूं, दैट इज नोन एज द हेलोएल्केन, ठीक है। सेकंड, उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन किया गया हेलोएल्केन्स का उनके 2 बेसिस पे। एक तो आपके पास कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम कनेक्टेड होंगे उसके बेसिस पे, और दूसरा है कि जिस कार्बन के साथ जो हेलोजन एटम लगेगा वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करता है। तो हम फर्स्ट टाइप पढ़ा था, ये फर्स्ट टाइप हमने यहाँ पे देखा है कि अगर मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, अगर मेरे पास एक हेलोजन एटम है दैट इज नोन एज द मोनो हेलोजन कंपाउंड। देखिएगा, मोनो हेलोजन यानी कि एक ही आपके पास क्या हो, हेलोजन एटम हो। अगर आपके पास 2 हेलोजन एटम हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो, डाई हेलोएल्केन बोल सकते हो या डाई हेलोजन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी बनती है डाई हेलोजन में। एक कैटेगरी कि एक ही कार्बन के ऊपर अगर डबल हो तो उसको जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं या जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। जेमिनल, ये जेमिनल वर्ड से लिया गया है। जेमिनल का मतलब होता है ट्विंस, ट्विंस मतलब होता है जुड़वा। सेकेंडली क्लासिफिकेशन इसका ये है आपके पास कि अगर ये जो आपके पास नेबरिंग कार्बन के ऊपर यानी कि आसपास के कार्बन के ऊपर होगा कौन, हेलोजन एटम, तो उसको बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड, जो विसिनल वर्ड से लिया गया। और विसिनल का मतलब क्या होता है, नेबरिंग, नेबरिंग कार्बन एटम यानी कि आसपास पड़ोसी कार्बन के ऊपर क्या लगा है, हेलोजन एटम लगा है। थर्ड आपके पास आता है 2 से ज़्यादा कहीं भी हेलोजन एटम हो, 2 से ज़्यादा कहीं भी, 3, 4, 5 कितने भी, हम उसको बोलेंगे पॉली हेलोजन एटम, ठीक है, पॉली हेलोजन बोलेंगे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 हेलोजन एटम पॉली हेलोजन या पॉली हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इनके, आपको पता होना चाहिए। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ हेलोएल्केन्स और हेलोएल्केन्स। सो बेसिकली we discuss introduction part of haloalkanes. The first classification is complete. So there is second classification on the basis of hybridization. And in class 11th हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत डीपली हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई थी, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। और नहीं याद है देन वेल एंड गुड भाई। on the basis of hybridization, on the basis of hybridization of carbon to which halogen is attached, to which हेलोजन इज अटैच्ड, यानी कि उस कार्बन की बात करेंगे जहां पे हेलोजन एटम अटैच है, ठीक है भाई। इसको भी क्लासिफिकेशन किया गया 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में इसको भी ब्रेक डाउन किया गया। फर्स्ट आपके पास कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन और हेलोजन किसके बॉन्ड के बीच, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यानी कि जहां पे भी हेलोजन एटम अगर जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब आएगी, लगाइए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब आएगी, जब कार्बन के चारों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे,
जब कार्बन के चारों बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, P के 3, S का 1, टोटल 4 हो गए ना, S का 1 और P का 3, तो टोटल 4 हो गए। तो यानी कि कार्बन के, और काउंट क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं हम, ठीक है कि नहीं। सिग्मा बॉन्ड में आपके पास सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। तो जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हम कौन से काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करेंगे। तो देखिएगा, अगर मैं बता दूं आपको कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा होगा, जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम जुड़ा होगा, वो आगे फर्दर 3 बॉन्ड्स बना रहा होगा, तो ये जो कार्बन होगी ये कौन सी होगी बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज होगी। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है भाई? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा के लिए क्या आता है, sp3 आता है, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। यानी कि अब की बार sp2 यानी कि 3 बॉन्ड होने चाहिए, 3 बॉन्ड। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, 3 बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा आपके पास इस प्रकार से। यानी कि ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एक बॉन्ड ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में बेटा हम काउंट करते हैं किसको, सिग्मा बॉन्ड्स को, सिंगल बॉन्ड को। तो 1, 2 और यहाँ से एक सिग्मा और एक पाई, तो 3 बॉन्ड हो गए, 3 के लिए क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये इस प्रकार से, यानी कि एक sp3 होगा तो आपके पास जो भी कार्बन है, जिस भी कार्बन के साथ हेलोजन एटम लगा है, वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और जो आपके पास sp2 की बात करेंगे तो एक आपके पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इनकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, इनकी भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिंपल कोई भी चैप्टर नहीं है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी आसान है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप कंप्लीट नंबर आ सकते हैं, पूरे के पूरे नंबर, कोई डिफरेंस ही नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, फिजिकल में नंबर कटने होते हैं, कट सकते हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक में और इसमें सॉरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो नंबर कटने के चांस बहुत कम होते हैं। आप पूरे के पूरे नंबर, कंप्लीट नंबर लेके आ सकते हो अगर आप पे कंसेप्ट क्लियर है। और अदरवाइज अगर यू बिलीव इन रट्टाफिकेशन, सो गॉड सेव यू। ओके, सो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक है। इसको टाइप्स यानी कि इसको फर्दर क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। बहुत आसानी से बेसिक से बता रहा हूँ बेटा। ये अगर जहाँ पे भी मैं पढ़ा रहा था वहाँ +1 में बाकायदा ये करवा दिए गए थे आप सभी को। जब हाइड्रोकार्बन्स की बात हुई थी तो आपको बता दिए गए थे कि अगर इस प्रकार से बॉन्ड हो तो इसको क्या बोलते हैं। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है आगे, क्योंकि जिनको पढ़ाया है वही कह रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक करवाइए, ठीक है। तो चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट इसने पूछा है एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट पार्ट यानी कि जो sp3 कार्बन होंगे, sp3 कार्बन यानी कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, sp3 है, हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो उसका फर्स्ट इसको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि इसको क्लासिफिकेशन किया गया। बहुत जरूरी है, ध्यान से देखेंगे सभी। एल्काइल हैलाइड्स, फर्स्ट इज द एल्काइल हैलाइड्स, फर्स्ट इज द एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा और उसके साथ हैलाइड यानी कि हेलोजन ग्रुप कोई भी जुड़ा होगा। यानी बेटा आप क्या कह सकते हो, ये RCH और X, ठीक है। दिस इज द एल्काइल हैलाइड, दिस इज द एल्काइल हैलाइड। ये भी एल्काइल ग्रुप है, C ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये X ग्रुप जुड़ा है। और मैंने बताया था sp3 कब बनेगी, जब सिंगल सिंगल बॉन्ड आएंगे तो sp3 बनेगी। देयर इज द, ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी कि ये कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, यहाँ पे एक मैंने एल्काइल ग्रुप, आप हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, देयर इज नो प्रॉब्लम,
ठीक है, मैंने एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया है, तो ये आपके पास एल्काइल हैलाइड। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलाइलिक हैलाइड। बच्चे जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सर, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। तो देखिएगा बेटा, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड की बात कर लेते हैं। एक्स को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स आप कुछ भी ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्स, ओके। तो दिस इज द एलाइलिक हैलाइड। सो देखिएगा बेटा, एलाइलिक हैलाइड दोनों बताऊंगा मैं, बेंजीन रिंग पे भी और ओपन चेन में भी, एलिफेटिक चेन में भी, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये आपके पास इस प्रकार से है, ये आपके पास एक्स जुड़ा हुआ है, ओके। अब ये तो सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को, कि यहाँ पे कार्बन, ठीक है, ऐसा तो कोई महानुभाव नहीं होगा कि ये नहीं पता होगा कि ये जो आपके पास ज्वाइंट है, पे क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने एक चीज और बहुत बार रिपीट की थी आपको, इफ यू रिमाइंड, कि अगर किसी भी ग्रुप के साथ अगर कार्बन लगा हो, किसी भी बेटा ग्रुप के साथ अगर कार्बन लगा हो, दैट कार्बन इज नोन एज द अल्फा कार्बन, दैट कार्बन इज नोन एज द अल्फा कार्बन। तो यह हेलोजन ग्रुप है, एक्स इज द हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप के साथ कार्बन लगा है, और कार्बन लगा है तो यानी कि इसका मतलब ये अल्फा कार्बन है। और जो अल्फा कार्बन है, ध्यान रखिए, एलाइलिक में जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होगी। कैसे? एक बॉन्ड ये फॉर्मेशन कर रहा है, एक बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड ये, और थर्ड बॉन्ड ये, ठीक है। अब नु कहोगे सर ये तो तीन ही बॉन्ड हुए, इसके लिए तो sp2। अरे भाई ऑब्वियसली बात है, एक हाइड्रोजन और लगा होगा एक बॉन्ड के साथ, टेट्रावैलेंसी तभी तो पूरी होगी। तो यानी कि सभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो जो अल्फा कार्बन होगा बेटा ध्यान रखना, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। एलाइलिक में बता रहा हूँ, एल्काइल में मैंने क्या बताया था, अगर हेलोजन एटम है और हेलोजन एटम के साथ जो कार्बन है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है एल्काइल में। यहाँ पे एलाइलिक में अगर मैं बात करूं तो ये बेंजीन रिंग यानी कि क्लोज एरोमेटिक की बात कर रहा हूँ, ये एरोमेटिक हैलाइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो आपके पास हेलोजन एटम है, इसके साथ कार्बन लगा है, ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। चलिएगा नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, लेकिन इधर देखिएगा, बीटा कार्बन इज कनेक्टेड विद द डबल बॉन्ड, बीटा कार्बन इज कनेक्टेड विद द डबल बॉन्ड। और जहां पे भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो, आंख मीच के बेटा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ध्यान रखिए इस बात का, बीटा कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होगा। सर आपने ये तो बता दिया, ये तो आपने रटाफिकेशन से हम रट लेंगे कि ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से। अगर एलिफेटिक चेन में आ गया तो कैसे करेंगे? ठीक है, एलिफेटिक चेन में देखिएगा, एलिफेटिक चेन में देखिएगा, ये कार्बन है, ये एक्स है, ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक्स लगा है, एक्स के साथ कार्बन है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड? एक दो तीन, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड है, सॉरी चार बॉन्ड बना रहा है, चार बॉन्ड यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ग्रुप के साथ कार्बन लगा तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे सर, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। अल्फा कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा होगा वो बेटा फर्दर जुड़ा होगा किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ। ये कार्बन मेरे पास हो जाएगी बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन जो होगी वो आपके पास क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइज होगी, दैट इज नोन एज द एलाइलिक हैलाइड। देयर इज द नो डिफरेंस, ये आपके पास क्लोज रिंग में था, ये आपके पास एलिफेटिक में है, यानी कि ओपन चेन रिंग है। आई थिंक you understand it. If there is halogen connected with the carbon there is the four bonds, single bonds, then is the alpha carbon. If any group attached with carbon, that carbon is known as the alpha carbon. Alpha carbon is sp3 hybridized. The next carbon is attached with the double bond. अब कई लोग कहोगे सर इस कार्बन नहीं, इस कार्बन को नहीं लेना है, हमें डबल बॉन्ड वाली कार्बन को देखना है। किसको? अच्छा
अगर ये कईयों के दिमाग में होता नहीं सर मैं इधर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये कार्बन होगी आपके पास, फिर क्या होगी ये कार्बन होगी, ये कार्बन लोगे तो दिस इज द बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन कनेक्टेड होगी डबल बॉन्ड के साथ, तो आपके पास ये हो जाएगा क्या sp2 हाइब्रिडाइज। दैट इज क्लियर, आई थिंक एवरी क्वेश्चन इज हियर क्लियर। ओके, सो दिस इज द एलाइलिक। जब तक आप कर करके नहीं देखोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी लग रहा है कि आपको नहीं बहुत आसान है कर लेंगे, लेकिन जब करोगे ना तब बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। एंड थर्ड टाइप इज द बेंजाइलिक हैलाइड। थर्ड टाइप इज द बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। सो हमारा जो एम है, जो उद्देश्य है मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फुल ऑफ आउट ऑफ फुल, यानी कि जो भी चाहे CBSE हो चाहे HBSE वो हो, यानी कि अगर आप, मैंने कल स्ट्रेटेजी बता दी थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखी होगी। तो ऑर्गेनिक में तो आपको कंसेप्ट ही चाहिए, ऑर्गेनिक मेन कंसेप्ट पे है। आपको अगर टाइम होगा तो क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे, NCERT के भी, PYQ भी। सो ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट इज द बेंजाइलिक हैलाइड। नाम से पता लग रहा है बेंजाइल मतलब जी बेंजीन रिंग होगी जी, ठीक है जी, ये बेंजीन रिंग होगी सर, इसके साथ CH2 और ये X, इस प्रकार से। अब सीधा मत लगा देना मेरे भाई कि बेंजीन रिंग के साथ गलती क्या करते हैं सर, बेंजाइलिक हैलाइड है सर ये X, नहीं भाई ये नहीं होगा, ये गलत है। ये CH2X, X के साथ जो कार्बन लगा, X के साथ जो कार्बन लगा, ये आपके पास देखिए दो बॉन्ड, ये एक इसके साथ तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन है। और सर अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है किसके साथ, sp3 हाइब्रिडाइज के साथ। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सभी में जो पहला कार्बन वो sp3 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट अगर कार्बन की बात करूं सर डबल बॉन्ड है, सर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होगी sp2 हाइब्रिडाइज होगी। दिस इज नोन एज द बेंजाइलिक हैलाइड, दिस इज नोन एज द बेंजाइलिक हैलाइड। आई थिंक इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर बेटा, सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। सभी को, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा ये, ओके। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स, यानी कि एल्काइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन, जो हमने एल्काइल हैलाइड हो, एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। वन डिग्री सबसे पहले, जिसको प्राइमरी भी बोलते हैं, जिसको प्राइमरी भी बोलते हैं, क्या होगा आपके पास, कार्बन, हेलोजन एटम, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक एल्काइल ग्रुप। अब ध्यान रखिएगा प्राइमरी, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे भी। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसको बोलते हैं कि हेलोजन एटम, और हेलोजन एटम के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और उसके साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, एक ही यार जुड़ा है ना यार, एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते हैं, एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है सेकेंडरी की बात करूं, ये कार्बन, ये X, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिएगा, एक R, दो R और ये H। दिस इज द सिंपल कि जी हेलोजन एटम, कार्बन, कार्बन के साथ दो क्या जुड़े हुए, एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो 2 डिग्री। नेक्स्ट होता है थर्ड डिग्री, टर्सरी, एक, दो और तीन, ये थर्ड डिग्री एल्काइल हैलाइड है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को जी, बताइए भाई किसी को कोई दिक्कत है भाई बताइए।
बताइए बेटा किसी को कोई दिक्कत है? बताइए किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिर्फ ये याद रखिएगा, जो हेलोजन एटम के साथ जो कार्बन जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, उसके साथ अगर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े है तो 2 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े तो 3 डिग्री। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है कंपाउंड कंटेनिंग sp2। कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। ये 2 टाइप्स में होता है बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट। वन इज द विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। सेकंड इज द एराइल हैलाइड, सेकंड इज द एराइल हैलाइड। देखिए विनाइलिक में होगा क्या, कार्बन, कार्बन इज कनेक्टेड विद द हेलोजन एटम, कार्बन इज कनेक्टेड विद द हेलोजन एटम and further this carbon is attached with the double bond carbon। ठीक है बेटा, ये याद रखना। ये H मैं लगा देता हूँ, बॉन्ड पूरे कर देता हूँ, 2 और 1 3 और 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये। ठीक है, अब देखिएगा ग्रुप, ग्रुप के साथ कार्बन लगा है सर अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, लेकिन मैंने बताया था कार्बन कहीं भी डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो बेटा तो क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होगी। क्या होगी बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, दैट इज द विनाइलिक हैलाइड। दिस इज द विनाइल, यानी कि हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के साथ कार्बन, और कार्बन फर्दर किसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड, ये अल्फा, अल्फा कार्बन, और हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है तो दैट इज द, बस गिन भी सकते हो आप, 1 2 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइज जाती है। एराइल, एराइल का मतलब होता है बेंजीनिंग यानी कि क्लोज। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एराइल है बेटा, ये X ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, 1 2 3। ये जो कार्बन देखिएगा, हेलोजन, हेलोजन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, दैट इज नोन एज द एराइल हैलाइड, दैट इज नोन एज द एराइल हैलाइड। उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट आपको समझ में आया होगा बेटा, उम्मीद करते हैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।